गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुसेट प्रसारण के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नंबर 2 में। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे टू मेक टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ टीएस डाइकोट एंड टीएस मोनोकोट स्टेम। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, सैंपल्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। This is of dicot stem, this is of monocot stem for the purpose of section cutting. Sharp blade, the newer blade I have, better to take the dissecting razor. Watch glasses, plain slides that are in that box, we will take 1 or 2, and cover slips that are in that box. Brush to transfer the sections, glycerine to make the temporary mount, and saffronin stain for the purpose of staining the tissue. Now the procedure, प्यारे विद्यार्थियों, take पीसेज ऑफ यंग मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के पीसेज हम ले सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने डाइकोट स्टेम का एक पीस लिया, कट द थिन सेक्शंस बाय कीपिंग द स्टेम इन बिटवीन फर्स्ट फिंगर एंड थंब. Keep the stem in such a way that the blade cut it horizontally. A thin section as much as possible is to be cut. Cut 4 or 5 sections. Keep these sections in a watch glass containing water. Now, in the same way, take a branch of monocot stem. Also cut the thin sections by keeping the stem in between first finger and thumb. Care is to be taken again so that the injury can be avoided. Thin sections of monocot stem as much as possible. After cutting the sections, we have to select some fine sections. Let us see, we have selected in the watch glass the 3 sections of dicot stem and 3 sections of monocot stem. Now add some saffronin solution, 1 or 2 drops with the help of dropper. Now stain the sections by adding 1 or 2 drops of saffronin stain on the cut sections. This is of dicot stem and this is of monocot stem. Now transfer the sections first
of dicot SAM with the help of brush in pure water to remove excess of stain. Also transfer the sections of monocoat SAM likewise in pure water to remove excess of stain. Now transfer one thin section on a clean slide that is of dicot. Now transfer thin section of dicot as well as monocoat on the plain clean slides that is of dicot, that is of monocoat. Now put a drop of glycerine over the slide and then place a cover slip gently using a needle so that air bubble is avoided. Tap the slide a little bit. If air bubble is there, then lift it again and fix once more to remove the bubble from the vicinity of the slide. Tap a little and then observe under microscope. This is of monocoat SAM. Likewise, put the cover slip over the section of dicot SAM. Precautions what are to be taken for preparation of these slides. प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पे हैं. The blade used must be sharp and should be free from nicks. जो ब्लेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शार्प होनी चाहिए और उसके अंदर कोई निक नहीं होना चाहिए, यानी दैट शुडंट बी द ब्लंट जो हिंड्रेंस पैदा करे इन सेक्शन कटिंग. यूज ओनली ब्रश फॉर ट्रांसफर ऑफ द सेक्शंस. ये हमने देखा कि हमने जितनी बार भी जो सेक्शंस ट्रांसफ़र किए हैं उन्हें ब्रश इस्तेमाल की है. ओवर स्ट्रेनिंग एंड अंडर स्ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी वी शुडंट लीव द सेक्शंस फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द स्ट्रेन so that we can avoid the overstraining, as well as we can wash the sections in water if overstraining is there. We should also put the sections for an appropriate period so that staining occurs in them. Always keep the cover slip gently to avoid air bubbles on the slide. Air bubble slide पे ना आए, उसको avoid करने के लिए बहुत धीरे से cover slip को सेक्शन के ऊपर रखना है. नो एक्स्ट्रा स्टेन एंड ग्लिसरीन शुड कम आउट ऑफ द स्लाइड. अगर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन और स्टेन बाहर आ जाता है तो वो टिश्यू पेपर के द्वारा या फिल्टर पेपर के द्वारा साफ कर देना चाहिए. हमने ये दो स्लाइड ली, इनमें एक्स्ट्रा ग्लिसरीन बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है. सो दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट placing of the cover slip as far as
the glycerine spreading is concerned. Before observing the slide under light microscope, we can discuss the characteristics of dicot stem. प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे TS डाइकोट स्टेम स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं. इसमें सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो है एपिडर्मिस. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इट बियर्स मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स एंड क्यूटिकल ओवर इट. इसके एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स होते हैं और एक थिक सी क्यूटिकल भी इसके ऊपर पाई जाती है. सेकेंड इसका स्ट्रक्चर है कोर्टेक्स. और कोर्टेक्स प्यारे विद्यार्थियों इसका 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली लेयर है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस मीन्स बिलो द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से नीचे है. इट इज़ प्रेजेंट बिलो एपिडर्मल सेल्स एंड मेड अप ऑफ कोलनकाइमा सेल्स. इसका दूसरा रीजन है प्यारे विद्यार्थियों कोर्टिकल रीजन यानी कोर्टेक्स. इट ऑल्सो कंटेन्स पैरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन दैम. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट रीजन है एंडोडर्मिस. इट इज़ द सिंगल लेयर दैट सेपरेट्स द कोर्टेक्स फ्रॉम वेस्कुलर बंडल्स. कोर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करने के लिए जो इनर मोस्ट सिंगल लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. इट हैज़ बैरल शेप्ड सेल्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च सीथ एज इट कंटेन स्टार्च. इसको स्टार्च सीथ भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टार्च मौजूद होती है. पेरीसाइकिल, द नेक्स्ट लेयर या थर्ड लेयर वी कैन से, या थर्ड पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ TS डाइकोट स्टेम is pericycle. It is made up of few layers of sclerenchyma cells. Now fourth is vascular bundles. Vascular bundles प्यारे विद्यार्थियों are numerous and arranged in a ring. वो एक रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं. The vascular bundles consist of phloem, cambium and xylem lying one above the other. That means collateral and open type वेस्कुलर बंडल्स. यानी इसके अंदर सबसे ऊपर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, ये एक दूसरे के ऊपर, यानी सबसे ऊपर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम. दैट मीन्स जो कंडीशन है दैट इज कोलैटरल. और क्योंकि कैम्बियम की प्रेजेंस इसके अंदर है, हैंस वी कैन से द वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन टाइप. जाइलम एज फार एज कंसर्न्ड, जाइलम वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. द मेटाजाइलम आर बिगर इन साइज एंड लाइंग टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी वो बाहर की तरफ हैं. प्रोटोजाइलम आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर. इस कंडीशन को एंडार्च कहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्रोटोजाइलम यानी छोटे जाइलम सेंटर की तरफ हैं और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हैं, यानी बड़े जाइलम बाहर की तरफ हैं. इस प्रकार की कंडीशन को एंडार्च कंडीशन कहते हैं, और जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लियरली कैन बी सीन इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्टेम. मेडुलरी रेज प्यारे विद्यार्थियों फिफ्थ स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पैरेन्काइमा सेल्स लाइंग इन बिटवीन द 2 वेस्कुलर बंडल्स. 2 वेस्कुलर बंडल्स क्योंकि साइड बाय साइड रिंग में प्रेजेंट हैं वेस्कुलर बंडल्स, तो मेडुलरी रेज जो हैं वो उन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, दिखाई देती हैं. नाउ पिथ, इट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड वेल डेवलप्ड. और इसके अंदर भी जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. प्यारे विद्यार्थियों डाइकोट स्टेम का मॉडल स्क्रीन पे आ रहा है और इसे आप देख सकते हैं. इसके अंदर सबसे पहले ये बाहरी लेयर है दैट इज ऑफ एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट greenish in color epidermis. Multicellular hairs are present on outer side also. Then there is second region that can be said as cortex. और cortex मैं डिस्कस किया था कि cortex के अंदर 3 फर्दर पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, जिसमें पहला पार्ट हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो एपिडर्मिस, दिस वन कैन बी द हाइपोडर्मिस. Then cortex, this all is cortex, 3 or 4 layers. Then endodermis,
the single layer barrel shaped cells that separate cortex and vascular bundles. These are vascular bundles. यानी cortex और vascular bundle को अलग करने के लिए endodermis the single layer. प्यारे विद्यार्थियों, cortex के अंदर ही हमें oil glands भी नजर आ रही हैं to store the oil in some of the plants. Now we can take vascular bundles. Vascular bundles प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड स्ट्रक्चर था, that can also be discussed. This is the phloem. This is again phloem. This is cambium. Then metaxylem. Metaxylem. Or inner side there is protoxylem. Small xylem are present on inner side. Large xylem are present on outer side. The condition is endarch. Phloem, cambium और xylem, ये जो अरेंजमेंट है ये आपके सामने है, तीनों ऊपर से नीचे की तरफ इनका अरेंजमेंट है. तो कंडीशन है कोलैटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल. प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम मेक देम ओपन. देन वी कैन से these are medullary rays. Medullary rays. This is pith, the central part of the stem, pith. So this is the diagrammatic representation with the help of a model of dicot stem. Likewise, what can be the characteristics before observing the slide of monocot stem? We can discuss. जो आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है एपिडर्मिस. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड बियर्स थिक क्यूटिकल ओवर इट. और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है. सेकेंड, हाइपोडर्मिस. इट कंटेन्स 2 to 3 layers ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. देन ग्राउंड टिश्यू. इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइपोडर्मिस throughout the center in the ground tissue. Numerous vascular bundles are present. Cortex, endodermis, pericycle, pith and medullary rays are not differentiated. उनको हम अलग अलग से नहीं बता सकते हैं, या वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग से विजिबल नहीं है. उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, वेस्कुलर बंडल्स, दे आर न्यूमेरस, स्कैटर्ड एंड एम्बेडेड इन कोर्टेक्स. बहुत सारे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं कोर्टेक्स रीजन में. ईच वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ए स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ अराउंड देम, हेंस द वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड एंड कोलैटरल. प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पे आपके डायग्राम आ गया है. डायग्राम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. डायग्राम के अंदर ये एनाटॉमिकल अपीयरेंस टीएस मोनोकोट का जो एक सिस्टमेटिक जो डायग्राम है वो दिखाया गया है. इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन कोर्टेक्स है, और कोर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स हेयर एंड देयर बिखरे पड़े हैं. एक वेस्कुलर बंडल का डायग्राम भी प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर आया हुआ है. इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल, जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम ऑन द अपर साइड, सीवी सेल्स एंड सीवी प्लेट्स आर देन देयर. उसके बाद जाइलम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं कि मेटाजाइलम यानी बिगर जाइलम आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, और स्मॉलर जाइलम यानी प्रोटोजाइलम आर प्रेजेंट ऑन इनर साइड. और ये जो जाइलम हैं, ये जाइलम वाई शेप में अरेंज्ड हैं. वाई शेप यानी दोनों मेटाजाइलम साइड में नजर आ रहे हैं और प्रोटोजाइलम उनके नीचे एक लाइन की तरह प्रेजेंट हैं. एक लैक्यूना और लाइसोजीनस कैविटी इवन इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम के बिल्कुल नीचे एक लाइसोजीनस कैविटी भी नजर आ रही है. बंडल शीथ प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्लियरली आपके स्क्रीन पे वाइजुअलाइज्ड है. एक और पिक्चर शो की गई है. इस पिक्चर के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स अच्छे से दिखाए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिखरे पड़े हैं ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर. और वेस्कुलर बंडल्स का जो प्लान हमने देखा, फ्लोएम ऊपर की तरफ, देन जाइलम, जाइलम में मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम के बाद प्रोटोजाइलम ऑन इनर साइड. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम ऑल्सो. जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 वेसल्स, 2 बिगर कॉल्ड मेटाजाइलम, यानी 2
मेटाजाइलम बिगर साइड में थे, जो हमने डायग्राम में देखा, शोज पिटेड थिकनिंग, और उनके अंदर जो थिकनिंग्स हैं वो पिटेड थिकनिंग है, यानी लगभग जो डिपोजिशन है वो पूरी की पूरी सेल्स के अंदर आ जाती हैं, केवल पिट्स बचती हैं जहाँ से कनेक्शन बनता है या जहाँ से सबस्टांसेस का आदान प्रदान होता है। 2 स्मॉल प्रोटोजाइलम, और 2 छोटे प्रोटोजाइलम होते हैं जो वाई की लोअर लाइन बनाते हैं, शोज स्पाइरल थिकनिंग, उनके अंदर जो थिकनिंग है यानी डिपोजिशन है वो स्पाइरली है या स्पाइरल डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सबस्टांसेस इज देयर। द वेसल्स आर अरेंज्ड इन वाई फॉर्म, मैं डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर चुका हूं। ए वाटर फील्ड कैविटी is also present below the protoxylem. Phloem consists of sieve tubes and companion cells. Phloem के अंदर sieve tubes और companion cells भी मौजूद होते हैं। Phloem even is differentiated in 2 parts, जिसमें बाहरी हम कह सकते हैं प्रोटोफ्लोएम और अंदर की तरफ हम कह सकते हैं मेटाफ्लोएम। तो प्यारे विद्यार्थियों, this also can be viewed through the model, the monocot stem. आप देख सकते हैं, दिस आउटर लेयर कैन बी सेड एज द एपिडर्मिस, इसके बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट कैन बी क्यूटिकल। उसके बाद स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की एक लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस, दैट इज 1 to 2 लेयर्ड। देन द ग्राउंड टिश्यूज, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने हैं ग्राउंड टिश्यूज, जिनके अंदर हमने पाया कि मेडुलरी रेज, कोर्टेक्स, पिथ का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग नहीं है। उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, यू कैन सी दीज आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यूज, ये ग्राउंड टिश्यूज में बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं ईच ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड विद ए सीथ दैट इज कॉल्ड बंडल सीथ, बंडल सीथ के द्वारा कवर्ड हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऊपर की तरफ दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम के बीच में एक लाइन है जो ऊपर प्रोटोफ्लोएम और नीचे मेटाफ्लोएम को अलग कर रही है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ये हो गए 2 मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। Metaxylem are of bigger side, protoxylem are of small size. Then there is the lysogenous cavity on the bottom of the protoxylem. आप प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो कि जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की शेप है दैट इज वाई शेप, ये वाई शेप यहाँ बन जाती है। सो दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द मॉडल। देन वी कैन व्यू द slides that we prepared through the compound microscope, और यहाँ हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड आप व्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो स्लाइड है दिस इज ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। तो इसके अंदर आप मल्टी सेलुलर हेयर्स, साथ के साथ वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज और बीच के अंदर पिथ, रिमार्केबल पिथ आपको नज़र आ रही है। तो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ ए डाइकोट स्टेम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मॉडल की सहायता से और डायग्राम्स की सहायता से डिस्कस की थी, वो सारी की सारी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इन द कट सेक्शन। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मोनोकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन भी आया हुआ है, और इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस 2 to 3 लेयर्स, देन ग्राउंड टिश्यूज़, और उन ग्राउंड टिश्यूज़ में पड़े हुए स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, और उन वेस्कुलर बंडल्स में जैसा हमने डायग्राम की सहायता से क्लियर किया था, मॉडल की सहायता से हमने देखा था, उसी प्रकार से वेस्कुलर बंडल्स विद सीथ आर विजिबल इन दैट सेक्शन जो आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस
जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम्स, तो आप कह सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकोट्स में वो ओपन टाइप के हैं, मोनोकोट्स में वो क्लोज टाइप के हैं। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकोट में और एब्सेंट होती है मोनोकोट में। डाइकोट में क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है हेंस दे आर ओपन, और यहाँ वो क्लोज हैं क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम बीच में नहीं है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग इन डाइकोट स्टेम्स while they are scattered in monocote stems। मोनोकोट स्टेम में वो ग्राउंड टिश्यूज के अंदर स्कैटर्ड हैं, बिखरे पड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिथ इन मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम्स, तो इसमें आप देख सकते हैं जो पिथ डाइकोट स्टेम्स में बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट है, अलग नजर आ रही है। हमने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, हमने देखा था, हमने पाया था। लेकिन मोनोकोट स्टेम्स में जो पिथ है वो ना के बराबर है, नजर नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफर सेक्शंस, स्टडी ऑफ ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ आया होगा और आप इजीली इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हुए आप अपनी लैब कंडीशंस में इस प्रैक्टिकल को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।